Good morning, viewers. After a long time, how are you all? I hope you all are doing well. This is Ratna, and today we are going to discuss parts of multiplication and parts of division. Okay, so as of we now know what is multiplication. Multiplication is nothing but a repeated subtraction. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही अदर फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, हियर आई एम हैविंग एन एग्जांपल 14 मल्टीप्लाइड बाय 2. 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. वी विल रीड द टेबल ऑफ 2. 2 4 ज़ा yes 8. Then 2 1s are 2, 28. Okay, so now the number that is to be multiplied, वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा इस क्वेश्चन में हमें 14 को मल्टीप्लाई करना था. सो दिस 14 इज नोन एज मल्टीप्लिकेंड. ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, द नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नोन एज मल्टीप्लिकेंड. The number by which we are multiplying, ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 2. 14 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. द नंबर विथ विच वी आर मल्टीप्लाइंग दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर. उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. एंड after doing multiplication of multiplicand and multiplier, the answer which we get is known as product. उसके बाद जो हमको आंसर मिलेगा दैट विल बी नोन एज प्रोडक्ट. ओके, सो दिस मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट, दीज 3 थिंग्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेंड. नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना हो दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेंड. नंबर विथ विच वी आर मल्टीप्लाइंग, वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिसका टेबल रीड करते हैं, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर. और जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. ओके, हियर आई एम हैविंग अनदर एग्जाम्पल 28 multiplied by 2. Here the number which we are multiplying, the number that is to be multiplied, यहाँ पे ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है, what number is that? That is 28. So 28 is known as multiplicand. The number by which we are multiplying, ऐसा नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स ऐसा नंबर जिसका हम टेबल रीड करेंगे, दैट विल बी नोन एज मल्टीप्लायर. और इनका जो आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज प्रोडक्ट. ओके, सो 8 2s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 56 is my product. That's it. These are the parts of multiplication: multiplicand, multiplier and product. What is multiplicand? The number that is to be multiplied. ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, that is known as multiplicand. The number with which we are multiplying, ऐसा नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर का हम टेबल रीड करते हैं, that is known as multiplier. Here in this question 2 is the multiplier, in this question again 2 is the multiplier. In this question 14 is the multiplicand, here 28 is the multiplicand. यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करना था, कितने टाइम्स करना था? 2 टाइम्स करना था. So 14 was the number that is to be multiplied, that's why this is known as multiplicand. 2 is the number with which we are multiplying 14, that's why this is known as multiplier, and the answer of this is known as product. There might some question in your book that find the product of the given numbers. If you see the word product, it means you have to multiply. ये जो प्रोडक्ट वर्ड है ये सिंबलाइज करता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ओके, like there are some keywords, if you
फाइंड दिस कीवर्ड, फाइंड द सम। इस सम का मतलब क्या होता है? यू नीड टू परफॉर्म एडिशन। फाइंड द डिफरेंस, अगर डिफरेंस लिखा हुआ है, व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू परफॉर्म subtraction. Same as if in the question it is written find the product or what will be the product of the given numbers, this product is a keyword which symbolize that you need to perform multiplication. Okay, I hope you all understood the parts of multiplication: multiplicand, multiplier and product. Okay, now let's move to the parts of division. Now come to the operation of division. Okay, very first, what is division? Dividing a total number of objects into equal number of groups. Okay, किसी भी total number of object को equal number of groups में divide करना ना. Equal number of groups means suppose I have 4 chocolates. Okay, और इस 4 चॉकलेट को मुझे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो इक्वल ग्रुप्स मीन्स ये जो 2 है, 2 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आने चाहिए. सो इफ़ आई डिवाइड 4 बाई 2, आई विल गेट 2. मीन्स अगर मैं 4 चॉकलेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूँगी तो एक ग्रुप में कितनी चॉकलेट्स आएंगी? 2 चॉकलेट्स. यानी 2 चॉकलेट्स के 2 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 4. So this operation is known as division. किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ डिवीजन. हियर आई हैव एन एग्जांपल, 16 divided by 8. I have total number of objects 16 and I need to divide it into 8 groups. अब इनको इक्वली डिवाइड करना है कि हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आए. सो लेट्स arrange it in the form of division, long division form. Okay, now read the table of 8. अब यहाँ पे क्या होता है? जो नंबर इस सिंबल के अंदर होता है, इस सिंबल के इनसाइड पे होता है, द नंबर इनसाइड दिस सिंबल, उसको डिवाइड करते हैं, एंड द नंबर विच इज आउटसाइड ऑफ द सिंबल, उसको हम टेबल रीड करते हैं. सो यहाँ पे मुझे 16 को 8 से डिवाइड करना है. 8 के टेबल में 16 आता है 2 टाइम्स में, ये 2 आएगा यहाँ पे. 16 में से 16 को मैंने माइनस किया. ओके, नाउ द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग, ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नंबर जिसका टेबल रीड कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिवाइजर और डिवीजर. ओके, the number which we are multiplying, the number that is to be divided. Okay, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करना होता है, that is known as dividend. जो आंसर आता है, that is known as quotient. और at the end of the division जो वैल्यू बचती है, that is known as remainder. Okay, so these are the parts of division. ये जो हैं ये 4 हो गए parts of division: dividend, divisor, quotient and remainder. In your textbook there are some question, verify by applying the formula, verify the division which you have performed by applying the formula. अब वो formula क्या होता है? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. क्या होता है वो formula? Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. इस फॉर्मूला पे अप्लाई करने के बाद अगर डिविडेंड और डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का आंसर इक्वल आता है, मीन्स आपका जो डिवीजन आपने परफॉर्म किया है दैट इज ऑल करेक्ट. बट टू यूज दिस फॉर्मूला वी शुड नो व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर, क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है. ओके, सो द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करना होता है, दैट इज नोन एज डिविडेंड. सो इन दिस क्वेश्चन 16 को डिवाइड करना है और 8 से डिवाइड करना है. वी नीड टू रीड द टेबल ऑफ 8 और 8 से हमको 16 को डिवाइड करना है. सो दिस 16 विल बी नोन एज डिविडेंड एंड दिस 8 जिसका हम टेबल रीड करेंगे विल बी नोन एज डिवाइजर. एंड द आंसर क्या आया था? 2. This 2 will be quotient.
ओके, नाउ दिस नंबर इज इक्वली डिवाइडेड, ये जो नंबर था ये कंप्लीटली इक्वली डिवाइड हो गया, सो एज रिमाइंडर वी गॉट 0 0. देर आर सम क्वेश्चन जो इक्वली डिवाइड नहीं होते और रिमाइंडर में कोई एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती, नॉन ज़ीरो वैल्यू यानी कि ज़ीरो को छोड़ के बाकी कोई भी दूसरी वैल्यूज़ आ जाती हैं. ओके, तो वहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो के अलावा जो नंबर आता है वो होता है. ओके, now let's understand this with the help of another example. Here I am having 28 divided by 7. So 28 is the number which is to be divided. 28 ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करना है. So this 28 is dividend. This 7 is the number which is by which we have to divide. So this 7 will be known as divisor. 7 वो नंबर है जिसका टेबल रीड करेंगे, जिसके थ्रू हम 28 को डिवाइड करेंगे. सो दिस 7 इज नोन एज डिवाइजर. अब 28 को 7 से डिवाइड करना है. सो वी नीड टू रीड द टेबल ऑफ 7. 7 1 ज़ा 7, यस. 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा यस 21, 7 4 ज़ा 28. 4 टाइम्स में डिवाइड होगा. 28 को माइनस किया, आंसर आया 0. Here 28 is the number which is to be divided, so this is known as dividend. The number by which we are dividing, we are reading the table, is known as divisor. The answer which we get is known as quotient. At the end of the division, the value which is remained is known as remainder. As the name says, remain, यानी कि जो बची हुई वैल्यू है, दैट बची हुई वैल्यू इज नोन एज रिमाइंडर. ओके, सो नाउ आफ्टर डिवाइडिंग द डिविडेंड 28 बाय डिवाइजर 7 वी गॉट 4 एज quotient. Okay, so I hope you all understood what are the parts of division. Parts of division are dividend, divisor, quotient, remainder. Dividend, divisor, quotient and remainder. Now I have some questions. Let's solve this. Here I am having a table and we need to complete this. Okay, let's observe the table first. We are having 4 columns, 1 2 3 4. Very first column is quotient, then dividend, then divisor, then quotient. What we need to do, first we need to solve the question and find out the answer. After that ये जो question के parts हैं इनको separately इनके column में ऐड करना है. ओके, सो हियर आई एम हैविंग 14 डिवाइडेड बाय 7. 14 इज द डिविडेंड. 14 को डिवाइड करना है और 7 से डिवाइड करना है. 7 का टेबल रीड करना है. ओके, सो लेट्स रीड द टेबल ऑफ 7. 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आएगा? यस, 2 टाइम्स में. ओके, सो 7 से 14 जो है 2 टाइम्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सो 2 विल बी माई क्वोशंट. 14 इज द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, सो 14 विल बी डिविडेंड. 7 is the number जिसका हम टेबल रीड कर रहे थे, so 7 is my divisor. Same as 2 is the answer, so 2 will go at the column of quotient. Understood? जिस नंबर को डिवाइड करना है दैट विल बी डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जिसका टेबल रीड कर रहे हैं, दैट विल बी डिवाइजर एंड द आंसर विल बी क्वोशंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 डिवाइड बाय 7. 7 का टेबल रीड करना है. 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में. ओके, सो दिस 28 विल बी डिविडेंड, 7 विल बी डिवाइजर एंड 4 विल बी क्वोशंट. इजी है. सेम एज नाउ 39 डिवाइड बाय 39. अब यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर ये दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या आएगा? 39 1 ज़ा 39. आंसर विल बी 1. सो दिस 1 विल बी माई क्वोशंट, दिस 39 विल बी माई डिविडेंड एंड दिस 1 विल बी माई डिवाइजर. अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चन, 14 डिवाइड बाय 2 एंड 28 डिवाइड बाई 4. आई एम नॉट डूइंग दिस. ये आप सॉल्व करेंगे. 14 डिवाइड बाई 2 में आंसर क्या आएगा ये फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विच इज़ द डिविडेंड, विच इज़ द डिवाइजर एंड व्हाट इज़ द क्वोशंट. ओके, 14 डिवाइड बाई 2 एंड 28 डिवाइड बाई 4. दिस इज होमवर्क फॉर यू. ओके,
Now let's solve another question. Here I am having again 4 columns, but this time the first column is dividend, then divisor, then quotient, then question. यहाँ पे हमको डिवीजन के बाकी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. इन पार्ट्स को यूज़ करके हमको क्वेश्चन फॉर्म करना है. दिस इज आवर टास्क. वी नीड टू फॉर्म द क्वेश्चन. वी आर हैविंग आंसर. इस कॉलम में क्या हो रहा था, हमारे पास क्वेश्चन था, आंसर फाइंड आउट करके उनको सेपरेट करना था. यहाँ पे पहले से आंसर गिवन है और सेपरेट किए हुए हैं पार्ट्स. इनको असेंबल करके क्वेश्चन बनाना है. ओके, सो लेट्स असेंबल दिस. वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग कॉलम ऑफ डिविडेंड, देन डिवाइजर, देन क्वोशंट. ओके, सो जैसा हमने यहाँ पे देखा, डिविडेंड आता है सबसे पहले, फिर आएगा सिंबल ऑफ डिवीजन, फिर आएगा डिवाइजर और उसके बाद आएगा क्वोशंट. ओके, सो सबसे पहले उठाते हैं डिविडेंड को, फिर लगाते हैं सिंबल डिवीजन का, फिर आएगा डिवाइजर और फिर लास्ट में आएगा क्वोशंट, मीन्स आंसर. ये बन गया हमारा क्वेश्चन. 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट इज 28 डिविडेंड, 4 डिवाइजर, क्वोशंट 7. बहुत सिंपल है, करते हैं. डिविडेंड आएगा सबसे पहले, फिर आएगा डिवीजन का सिंबल, फिर आएगा डिवाइजर और सबसे लास्ट में आएगा क्वोशंट. ओके, देन वी आर हैविंग अगेन 28 एज अ डिविडेंड, 7 एज डिवाइजर एंड 4 एज क्वोशंट. अंडरस्टूड. नाउ ये लास्ट के 2 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे. अब तक जो सॉल्व किया है, मीन सेकेंड और थर्ड को. वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन एज अ लास्ट क्वेश्चन. सो दिस लास्ट क्वेश्चन आई एम नॉट सॉल्विंग इट. इसका क्वेश्चन फॉर्म करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इफ यू हैव डिविडेंड 14, डिवाइजर 2 एंड quotient 7. So what will be my question? अगर आपके पास 14, 2 और 7 एज अ डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशंट है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2nd and 3rd. See here, we are having same dividend. The divisor and the quotient got interchanged in these 2 क्वेश्चन. यहाँ पे जब 4 डिवाइजर था तो 7 क्वोशंट हो गया, और जब 7 डिवाइजर है तो 4 क्वोशंट हो गया. यहाँ से क्या समझ आता है कि ये जो डिवाइजर और जो क्वोशंट होते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमको डिविडेंड मिलता है. ओके, अगर आपके पास 28 है और क्वोशंट है तो आप 28 से 7 को डिवाइड कर 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आपको डिवाइजर मिल जाएगा. इफ़ यू हैव 28 एंड डिवीजर तो आपको क्वोशंट मिल जाएगा. ओके, तो ये जो क्वोशंट और डिवाइजर होते हैं, ये दोनों के दोनों मल्टीपल होते हैं डिविडेंड के. ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं डिविडेंड के. आप किसी भी क्वेश्चन के डिवाइजर और क्वोशंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एज अ डिविडेंड आंसर मिल जाएगा. ओके, हियर वी आर हैविंग 2 डिवाइजर एंड 9 क्वोशंट. सो 9 2s अगर करोगे आप तो क्या आएगा आंसर, 18. यू गॉट द डिविडेंड. ओके, हियर वी आर हैविंग 4 and 7. 7 4s are 28. Again 7 4s are 28. Okay, we got the dividend as answer. So we can say that divisor and quotient are the multiple of dividend. Okay, so this question and these 2 questions, the answer let me know in the comments. So this is all for the day. I hope you all enjoyed this session. Don't forget to like, share, subscribe my channel if you understand and enjoyed the video which I explained. Okay, I'm going to upload some more informative videos soon. Till then, stay tuned with me. Have a nice day.